بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں جاندار بے اور اسلحان الیار کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ پھر اسلحان کہتی ہے انہوں نے ہمارے ہی قبیلے میں اورال بے کو مجرم بنا کر ان کو سزا سنا دی، آپ ان کی حمایت کرنے کی کیسے ہمت کر سکتے ہو؟ الیار کہتا ہے میں ان کی موت کی سزا کی حمایت نہیں کر رہا بلکہ میں ایک قاتل کی سزا کی حمایت کر رہا ہوں۔ اسلحان ہم عزت دار زندگی تبھی گزار سکتے ہیں جب ہر ایک کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ سردار جاندار کہتا ہے آپ عزت سے کہاں رہو گے جب آپ کا قبیلہ ہی نہیں رہے گا، پہاڑوں میں رہ کر اس خواب کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور پھر کہتا ہے میرے 2 بیٹے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے قبیلے اور اپنی روایات کے ساتھ وفادار ہیں، اور اب دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ نے مجھے بہت مایوس اور بہت پریشان کیا ہے الیار، آپ کیسے ارطغرل کا ساتھ دے سکتے ہو؟ الیار کہتا ہے بابا، ایک ایسا مرد جو بچوں کو مارنے اور عورتوں کو تکلیف دینے سے پہلے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچتا، اپنی بھلائی کے لیے ہر طرح کا فتنہ پھیلائے، کیا آپ ایسے شخص کو ایک اچھا بیٹا سمجھتے ہو؟ میں نے تعلیم حاصل کی ہے، تاہم ان کتابوں میں سے کسی نے بھی مجھے ظالم کے ساتھ کھڑا ہونے کی تعلیم نہیں دی، اور اس تعلیم نے مجھے اس قابل بنایا ہے میں اس شخص کا ساتھ بالکل نہیں دے سکتا جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں پر ظلم کرے۔ میں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ پھر الیار کہتا ہے بابا، کاش آپ وہ سارا سچ جان سکیں جو میں جانتا ہوں، آپ کو اقتدار سے اندھا کر دیا گیا ہے، میں سچائی کو پوری وضاحت کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، اور اگر میں اس سب کے باوجود اپنی خاموشی اختیار کرتا ہوں تو میں خود شیطان بن جاؤں گا۔ پھر اسلحان کہتی ہے ہم میں سے کون بے گناہ ہے، بے انصافی نے ہمیں گھیر لیا ہے اور آپ شاید ظالم کے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ایک قبیلہ ٹوٹ جاتا ہے تو معصوم لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ الیار کہتا ہے وہ رحمان اور رحیم اللہ موجود ہے جو معصوموں کی حفاظت کرتا ہے اسلحان، اور وہی خالق ہے جو اپنی مخلوق کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اپنی مخلوق کی حفاظت کے لیے ہم میں سے ہی کسی ایک کو چنتا ہے۔ پھر سردار جاندار کہتا ہے کہ جاندار قبیلے کے سردار کے طور پر مجھے کبھی نہیں بتایا گیا کہ کسی کے ذریعے کیا کرنا ہے، اور نہ ہی میرا کوئی اس سے مطلب ہے۔ پھر الیار کہتا ہے بابا، ہم سب پر خدا کی حکمرانی ہے، ہم صرف اس کی سلطنت کو جانتے ہیں، اپنے قبیلے کی سرداری پر غرور مت کریں بابا، اور یہ مت بھولیں کہ وہ ایک چھوٹا سا مچھر تھا جس نے فرعون کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ پھر الیار اسلحان کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہتا ہے آپ بھی یہ جان لو بہن، جب آپ کی شادی امیر سعادتین کے ساتھ ہوگی تو اپنے آپ کو خراب نہ ہونے دینا تاکہ آپ کا نام تاریخ میں کسی ظالم سلجوق سلطان کے ساتھ نہ لکھا جائے۔ یہ کہہ کر الیار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جاندار قبیلے کے قید خانے میں ترگت الپ اورال سے کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے کیے کا تم سے حساب لیا جائے، میں تمہیں پہلے ہی سزا دے چکا ہوتا لیکن تم دعائیں دو ارطغرل بے کو۔ پھر اورال کہتا ہے تم نے ابھی تک میری اصل طاقت نہیں دیکھی، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے یہاں باندھ کر تم نے سب کچھ صحیح کر لیا ہے؟ یہ سن کر ترگت الپ مسکراتے ہوئے کہتا ہے ایک کتا جب اپنی موت کے قریب پہنچتا ہے تو وہ بہت شدت سے تڑپتا ہے اور بونکتا ہے، تمہاری حالت بھی اب اسی کتے کی طرح ہے تو تم اب بونکتے رہو۔ پھر اورال اسے کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے دو تو پھر میں تمہارا غلیظ سر اتار دوں گا۔ یہ سن کر ترگت الپ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے، اتنے میں الیار آ جاتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے اور پھر کہتا ہے وقت آ گیا ہے، چلو اب چلیں بھائیو۔ پھر ترگت اور دوان الپ اورال کے ہاتھ کھولنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف اسلحان بھی چولپن کے خیمے میں آ کر اسے کہتی ہے وقت آ گیا ہے بابی، پھر چولپن کو لے کر جانے کے لیے اس کے ہاتھ باندھ دیتی ہے۔ اتنے میں ترگت الپ اورال کو کھینچ کر باہر لے کر جا رہا تھا تو جاندار قبیلے کے لوگ کہہ رہے تھے ہمارے سردار اورال کو چھوڑ دو، یہ قاتل نہیں ہے۔ اس کے بعد سردار جاندار بھی باہر آ جاتا ہے تو پھر اورال اور چولپن کو مرکزی خیمے کے باہر لایا جاتا ہے۔ پھر اورال چولپن کو کہتا ہے یہ آخری رات تھی جو ہم نے ایک دوسرے کے بغیر گزاری ہے، اس کے بعد ہمیں موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر چولپن مسلسل رو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سپاہی ان دونوں کو کھینچ کر ہنلی بازار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں عدالت لگائی جانی تھی۔ دوسری طرف ہنلی بازار میں عدالت کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران حلیمہ سلطان اندر ارطغرل کو آ کر کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سعادتین کو پیک اورال کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے اب وہ انصاف کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے حلیمہ سلطان، اس فتنہ باز شیطان اورال کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن یہ جان لو کہ اگر سعادتین کو پیک نے اس کو بچانے کی کوشش بھی کی تو پھر بھی انصاف قائم ہوگا۔ میں نے ان کے لیے ایک ایسا حیرت انگیز اقدام کیا ہوا ہے کہ جسے دیکھ کر وہ سب حیران رہ جائیں گے۔ ادھر کارا چیسر قلعے میں کمانڈر رسولیس پیترس کو کہتا ہے آج ہنلی بازار میں اورال اور لسکارس کا مقدمہ چلایا جائے گا۔
जिसके बाद उनको सजा देने के लिए कोनिया लेकर जाएंगे। तुम रास्ते में उनके लिए एक जाल बिछाओगे और फिर दोनों को पकड़कर यहाँ लेकर आओगे। फिर पैतरस कहता है जैसा आपका हुक्म कमांडर। ये कहकर पैतरस वहाँ से चला जाता है। पैतरस के जाने के बाद हेलेना अंदर आ जाती है। कमांडर वसूलियस हेलेना को कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। आज तुम्हारे बाबा के कातलों के खिलाफ एक मुकदमा चलाया जाएगा जिसके बाद उन्हें सजा दी जाएगी। ये सुनकर हेलेना कहती है मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ ताकि उन कातलों के मुंह पे थूक सकूं। फिर कमांडर वसूलियस हेलेना को कहता है क्यों नहीं, तुम जरूर जाओगी वहाँ, ये तुम्हारा हक है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान हाइमा हनम से कहती है मुझे याद है जब मुश्तकीन का मुकदमा चलाया गया था तो सादतीन ने कैसे मामलात को खराब किया था। फिर हाइमा खातून कहती हैं लेकिन तुम ये मत भूलो कि उसकी तमाम चालों के बावजूद इंसाफ कायम हुआ था। फिर दुंदार कहता है हमें इस उराल पर मुकदमा चलाने के बजाय खुद ही उसे सजा दे देनी चाहिए थी। ये इस काबिल नहीं है कि इस पर मुकदमा चलाया जाए। इतने में अर्तुगरुल भी उधर आ जाता है और फिर दुंदार को कहता है अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर एतबार करें तो तुम्हें अदालत के जरिए ही इंसाफ कायम करना चाहिए और अल्लाह भी हमें इसी चीज का हुक्म देता है। और जैसा तुम सोच रहे हो अगर मैं वैसा कर देता तो अभी दोनों कबीलों के दरमियान जंग चल रही होती और इस तरह बहुत से मासूम लोगों का खून बह जाता। इतने में बमसी अंदर आ जाता है और आकर बताता है कि वो लोग आ गए हैं अर्तुगरुल बे। ये सुनकर अर्तुगरुल बाहर चला जाता है। बाहर अलियार की सरबराही में लश्कारिस ओराल और चोलपन को लेकर आया जा रहा होता है। इसी दौरान चोलपन ओराल को कहती है मैंने सोचा था कि हम दोनों ही गट्ठे मरेंगे लेकिन मेरे बच्चे की वजह से शायद मुझे बाद में मारा जाएगा। फिर ओराल चोलपन को कहता है मैं अपने बच्चे को यतीम नहीं होने दूंगा। अमीर सादतीन और मेरे बाबा मुझे बेगुनाह समझते हैं, इसलिए मुकदमे के दौरान तुम अपने मौक़िफ़ पे डटी रहना। इतने में अर्तुगरुल बाहर आ जाता है तो फिर उनका आमना सामना हो जाता है। फिर ओराल कहता है दुआ करो कि मुकदमे में मैं मारा जाऊं और अगर मैं बेगुनाह साबित होकर आजाद हो गया तो तुम्हारी सारी कहानियां हकीकत में बदल जाएंगी, जिसके बाद तुम और तुम्हारे जंगजू और फिर तुम्हारी बीवी और बच्चा भी मेरी गोद में आकर गिरेंगे। फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इंसाफ का मतलब क्या होता है। ये सुनकर अर्तुगरुल से कहता है तुम दुआ करो कि इस मुकदमे में मारे जाओ ताकि तुम्हें मार कर मुझे अपने हाथ गंदे न करने पड़े। और रही बात तुम्हारे बच्चे की तो मैं उसे तुर्कों के लिए एक लानत नहीं बनने दूंगा और जब तुम्हें सजा मिल जाएगी तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बच्चे की सही तरबियत करके एक इज्जतदार जंगजू बनाया जाए। जिसको सुनने के बाद ओराल सख्त गुस्से में आ जाता है। फिर तुर्गुत उसे खींचकर अंदर की तरफ ले जाता है। इतने में सादतीन गोपैक भी वहाँ आ जाता है और आकर अर्तुगरुल को कहता है मुझे आपको दाद देनी पड़ेगी, आपने यहाँ सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इक़दाम किए हुए हैं, अब तो यहाँ शैतान भी खुद दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर अर्तुगरुल कहता है अल्लाह हमें अंदर के शैतान के शर से महफूज रखे। ये सुनकर सादतीन मुस्कुराने लगता है और फिर अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जानदार और इस्लेहान भी वहाँ आ जाते हैं और फिर आकर जानदार बे कहता है मैं उस दिन पर लानत भेजता हूँ जिस दिन तुम इन जमीनों पर आए थे अर्तुगरुल बे। तुम्हारे फितनों की वजह से हमारे कबीले का सुकून तबाह हो गया है। तुमने हमारी इज्जत को दागदार कर दिया है। इस मुकदमे का फैसला चाहे जो भी हो लेकिन तुम ये जान लो कि अब से तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, हत्ता के काफिरों से भी बढ़कर हो तुम मेरे लिए। फिर अर्तुगरुल कहता है मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे आपका कबीला इंसाफ पर कायम हो ताकि फिर अगर मैं भी कोई गलत काम करूँ तो मुझे आप सजा दे सको। ये सुनकर इस्लेहान कहती है मेरा भाई कातिल नहीं है, आपने हमें बहुत ज्यादा दुख पहुँचाया है अर्तुगरुल बे। मैं दुआ करती हूँ कि जल्द ही अल्लाह आपसे इसका हिसाब ले। ये कहकर फिर वो दोनों अंदर की तरफ चल पड़ते हैं, जिसके बाद अर्तुगरुल भी अंदर की तरफ रवाना हो जाता है। थोड़ी ही देर में 3 घोड़सवार आदमी हल्ली बाजार में दाखिल हो जाते हैं। अंदर सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इसी दौरान हेलेना और कमांडर वसूलियस भी आ जाते हैं, जिसके बाद उनको भी एक जगह पर बिठाया जाता है। थोड़ी ही देर बाद अमीर सादतीन भी उधर हाजिर हो जाता है। फिर सब लोग खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं। फिर वो सामने खड़ा होकर सबको बैठने को कहता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है आज हम जिस फैसले के लिए इकट्ठे हुए हैं वो न सिर्फ 2 कबीलों के दरमियान है बल्कि 2 रियासतों के दरमियान भी है। इसी वजह से मैंने गवर्नर की बेटी हेलेना और कारा जैसर किले के अजीम कमांडर वसूलियस को भी दावत दी थी। इंशाअल्लाह ये मुकदमा दोनों कबीलों और दोनों रियासतों के दरमियान दुश्मनी को खत्म कर देगा। ये कहकर वो नीचे बैठ जाता है, जिसके बाद एक सिपाही आकर उसे काजी वाली टोपी दे देता है। लेकिन एन उसी वक्त 3 आदमी उस अदालत में दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद अमीर सादतीन कहता है कौन है आप लोग। फिर उनमें से एक आदमी कहता है सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म पर मुझे इस अदालत का काजी लगाया गया है। ये सुनकर अदालत में मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन अर्तुगरुल हकीम आर्तुग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर काजी सादतीन गोपैक के पास आकर उसे हुक्मनामा देता है। सादतीन हुक्मनामा खोल कर पढ़ने लगता है और उसके बाद कहता है मैं सुल्तान के फैसले की इज्जत करता हूँ और मेरे लिए ये शख्स की बात होगी कि ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंप दूँ। फिर वो टोपी काजी को दे देता है और वो अपनी टोपी पहनकर साइड पर बैठ जाता है। इसके बाद काजी के आसपास 2
दो आदमी बैठ जाते हैं जो उसके साथ आए थे। इतने में तुर्गुत अल्प लस्कारिस को लेकर उधर हाजिर हो जाता है, जिसको देखकर हेलेना गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, कातिल, लानत हो तुम पर। इसके बाद लस्कारिस को ओराल और चोलपन के साथ बिठा दिया जाता है। फिर मुकदमा शुरू हो जाता है। सबसे पहले अर्तुगरुल कहता है, काजी साहब, सबूत के तौर पर मैं ये तीर और कमान पेश करना चाहता हूँ जो लस्कारिस के सामान से मुझे अलियार बे की मौजूदगी में मिले थे। फिर एक सिपाही आता है और वो तीर और कमान उठाकर काजी के सामने रख देता है। जिसके बाद अर्तुगरुल कहता है, गवर्नर पे जो तीर चलाया गया था वो तीर भी इन्हीं में शामिल है। फिर तीनों काजी वो तीर उठाकर देखना शुरू हो जाते हैं, जिनको देखने के बाद वो तीनों कहते हैं कि ये तीर एक जैसे हैं। फिर काजी लस्कारिस को मुखातिब करता है और कहता है, जो अर्तुगरुल बे ने कहा है क्या वो सब कुछ सही है? लस्कारिस कहता है, जी हाँ, ये सब कुछ दुरुस्त है। मैंने गवर्नर को इसी तीर से निशाना बनाया था और ऐसा करने का हुक्म मुझे ओराल ने दिया था। जिसको सुनकर ओराल कहता है, ये झूठ है काजी साहब। फिर हेलेना खड़ी हो जाती है और कहती है, कातिलो, तुम सब का हिसाब जरूर होगा। खुदा की लानत हो तुम पर, तुमने मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। ये कहकर वो रोते हुए बाहर चली जाती है। जिसके बाद बामसी भी उठकर उसके पीछे चला जाता है। फिर ओराल कहता है, मैं और मेरी बीवी इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। ये सबूत जाहिर करता है कि लस्कारिस कातिल है, लेकिन ये बिल्कुल साबित नहीं करता कि मेरा इससे कोई लेना देना है। फिर काजी कहता है, लस्कारिस का ये भी कहना है कि आपने अर्तुगरुल के बीवी और बच्चे, हत्ता कि अपनी बहन इस्लेहान को भी कत्ल करने की कोशिश की थी, और इसके अलावा टोकटामिश और अयबूक खातून को अपनी बीवी चोलपन के साथ मिलकर कत्ल किया है। क्या ये सब भी झूठ है ओराल? ओराल कहता है, ये सब झूठ है काजी साहब। इन सब फितनों के पीछे सिमन था जिसको मैंने कत्ल कर दिया है। फिर तुर्गुत अल्प बोलता है और कहता है, काजी साहब, हम सिमन को जिंदा सलामत पकड़ने वाले थे ताकि वो सब गुनाहों का एतराफ करे, लेकिन हमारे रोकने के बावजूद ओराल ने उसको कत्ल कर दिया था। ये चाहता था कि उसको एतराफ करने से रोका जाए ताकि इसके गुनाह सामने न आ पाए, जिसमें ये कामयाब हो गया था। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है, तीन और गवाह हैं जो इस बात को साबित करेंगे कि ओराल ने मेरे जंगजुओं का कत्ल करके मेरी कलीनें जला दी थी जो मैंने कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना की थी। और मैं उन गवाहों को भी पेश करना चाहता हूँ, जिनमें जानदार बे, अलियार बे और सिपाही कुतलुजा शामिल हैं। फिर काजी सबसे पहले अलियार से पूछता है, क्या ये सच है? अलियार कहता है, जी बिल्कुल ये सच है। उसके बाद काजी सिपाही कुतलुजा से पूछता है, क्या अर्तुगरुल बे सच कह रहे हैं? सिपाही कुतलुजा कहता है, जी हाँ बिल्कुल, ये सब दुरुस्त है। इसके बाद काजी जानदार बे को कहता है, जानदार बे आप बताएं आपका क्या मौकिफ है? सरदार जानदार कहता है, ये सच है, मेरे बेटे ने गलती की थी, ये अपने लालच में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन दोनों कबीलों में दुश्मनी को फैलने से रोकने के लिए मैंने उन डाकुओं को ढूंढकर सबको मार दिया था जिन्होंने अर्तुगरुल बे के जंगजुओं को कत्ल किया था, और इनके जंगजुओं का बदला मैंने ले लिया था। फिर अर्तुगरुल कहता है, और आपका दोस्त टोकटामिश भी मारा गया था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उनकी मौत को भी आप रायगान जाने दोगे? फिर सरदार जानदार कहता है, अर्तुगरुल हमें तबाह करने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे बेटे के एक जुर्म को अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर काजी कहता है, बहुत हो गया, आप इस तरह हंगामा करके इंसाफ को हासिल नहीं कर सके। फिर काजी सिपाही कुतलुजा की तरफ दोबारा मुखातिब होता है और कहता है, आप बताओ कि आपने अयबूक खातून की मौत कैसे देखी? कुतलुजा कहता है, टोकटामिश की मौत के बाद वो गायब हो गई थी, मुझे उसकी हरकतें मशकूक लगना शुरू हो गई। मैंने उससे बात की और उसके जुर्म के बारे में उसे बताया, जिसके बाद उसने लाजमी चोलपन खातून को इस बारे में बताया होगा कि मुझे उस पर शक हो गया है और इसी वजह से वो मारी गई है। फिर अलियार कहता है, कुतलुजा ने जब मुझे इस बारे में बताया था तो मैं अयबूक के हेमे में गया था, उसको सांस बंद करके मारा गया है काजी साहब। उसके सर के पीछे एक चोट का निशान था और उसके मुंह से एक बकरी का बाल निकला था जो तकिए से उतरा था। इसके अलावा उसके जिस्म की रंगत नीले रंग की हो गई थी, जो तब होती है जब किसी को सांस बंद करके मारा जाए, और यही हकीकत है काजी साहब। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।